on C programming. So in this lecture, we are going to learn about C pointers. Now, what is a pointer? Basically, pointer is a powerful feature of and C++ programming that allows you to directly access the addresses. So if you have variable var in your program, then ampersand r means ampersand and then you write var will give you the address memory where that particular location is stored. Like in the RAM, it is stored at 3355 location. So that location will be accessed through ampersand var. ये var की जगह आप a b c कुछ भी ले सकते हो. So we have used the addresses numerous times while using a scanf function. So for example, scanf %d and then I can write ampersand var. मतलब उस लोकेशन पे var के ये जो भी डेटा आया है उसको स्टोर कर दो. तो ये ampersand हमने printf में नहीं लिखा था लेकिन scanf में लिखते थे क्योंकि scanf में पहली बार डेटा स्टोर होने वाला है, वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन ampersand से मिलती है. Now here the value entered by the user is stored at the address var. For example, include stdr.h int main. Then we write var equal to 5. Now if we say print var %d ampersand n comma var, this will print the value 5. Okay. And now if we say address of var, then %p and then write ampersand var, then it will print the address where this particular variable is stored into the RAM. So 2686778 आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी नहीं देख पा रहे हो क्योंकि वो इंटरनली असाइन होके आता है वो लोकेशन इनसाइड द रैम जहाँ पे ये लोकेशन इस लोकेशन पे 5 वैल्यू स्टोर की गई है. सो यू गेट अ डिफरेंट एड्रेस व्हेन यू रन द कोड एवरी टाइम. इसका मतलब क्या है कि हर बार रैम का नया एरिया एक्सेस हो जाता है. आप ये कोड 2 बार 3 बार रन करोगे तो एड्रेस ऑफ वेयर विल ऑलवेज वेरी but var will not vary. Now, in C pointers, they are the special variables that are used to store these addresses rather than the values of that particular address. For example, pointer syntax. Now, here is how we can declare a pointer. Int star p colon. Okay. Here we have declared a pointer p of int type. Okay. Now, you can also declare the pointer in these ways. First is int. Instead of giving star just after int, you can put a space bar, put a star and then p1, or you can give space bar between the both. So typically I use the second one where int then put a space, then star and then variable name. Now another example where declaring the pointers could be int p1 and p2. Here we have declared a pointer and a normal variable p2. सो ये स्टार के वजह से ऐसे लग सकता है कि वो बीच में स्पेस है तो P1 P2 दोनों पॉइंटर है, तो वैसे नहीं है. पॉइंटर P1 है और नॉर्मल वेरिएबल P2 है. अगर उसको भी स्टार देते तो वो भी पॉइंटर बन जाता. नाउ असाइनिंग अ एड्रेस टू द पॉइंटर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हाउ वी विल असाइन अ एड्रेस टू पर्टिकुलर पॉइंटर. यहाँ पे मैंने दो चीजें डिफाइन की है. एक तो PC करके पॉइंटर डिफाइन किया है और C करके वेरिएबल डिफाइन किया है. Then I stored C equal to 5 and then PC equal to ampersand C. तो यहाँ पे पॉइंटर को मैंने लोकेशन ऑफ C असाइन कर दिए. So here 5 is assigned to C variable and address of C is extracted after that and then only you can assign it to a pointer. Now get the value of a thing pointed by a pointer. So how we can do that? So you want to take a value of the pointer, we have to use a star operator. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे देखो int star pc मतलब यहाँ पे एक पॉइंटर डिफाइन किया है एंड देन c विच इज अ वेरिएबल नेम. ये पहला कोड सेम वैसा ही है जैसा हमने ऊपर देखा है कि c इक्वल टू 5 देन pc इक्वल टू एम्परसेंड c. ठीक है. देन printf %d कॉमा स्टार pc. अब यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार pc लगाने की वजह से वो pc जहां भी वैल्यू है वहां से एक्सट्रैक्ट करके वो 5 वैल्यू जो है c की वो निकाल लाएगा एंड दैट विल बी गेट प्रिंटेड एट द आउटपुट 5. So here the address of C is assigned to the PC pointer. To get the value stored at that particular pointer, we have to use star PC. Now in above example, PC is a pointer and star PC is not. Star PC is again same as C. So you cannot and should not use something like star PC equal to ampersand C. That is wrong. So by the way, star is called dereference operator, which is working for pointers, and these pointers can give a value
stored at that particular pointer. So changing the value pointed by the pointer, how you can do that? Let's take another example. So let's take an example where int star pc, which is again a pointer location, and then c. So pc you can say pointer to the c, ऐसे लिखते हैं जनरली. तो p असाइन कर देते हैं वेरिएबल के पहले, जैसे निनाद लिखोगे वेरिएबल नेम, तो p निनाद will be the pointer to the निनाद. हाँ, then you write c equal to 5, then pc equal to ampersand c. ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है कि अगर p निनाद equal to ampersand निनाद नहीं लिखा तो वो वैल्यू वहां पे असाइन नहीं होगी. then you can write c equal to 1, then printf %d, c, यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा. एट द सेम टाइम %d स्टार pc लिखा तो भी आउटपुट 1 ही आएगा. सो वी हैव असाइंड एड्रेस ऑफ c टू द pc. यहाँ पे देखो c की ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, पर जो अपडेट होने के बाद pc स्टार pc की वैल्यू भी अपने आप अपडेट हो जाती है. नाउ सिंस वी चेंज द वैल्यू ऑफ c टू 1, द एड्रेस पॉइंटेड बाय pc is also modified, so star pc also gives us 1. Let's take one more example on this. So if I declare int star pc, so pointer to the c, ये हमने डिक्लेयर किया. आप देखोगे कि ये पहली लाइन हर जगह सेम ही है, कॉमा c. then c equal to 5 पे हमने डिक्लेरेशन किया, and we are writing pc equal to ampersand c. तो ये पहले 3 लाइन हर प्रोग्राम में सेम ही जा रहे हैं, तो अब तक आपको ये 3 लाइन याद होने लगेंगे. फिर आप लिखोगे स्टार pc equal to 1, तो यहाँ पे आपने c को मॉडिफाई करने की जगह pc की लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको 1 डाल दिया. तो आप देखोगे कि यहाँ पे c की वैल्यू भी 1 हो गई अपने आप, और स्टार pc की वैल्यू तो आप ही ने 1 इंसर्ट की थी, तो वो तो 1 प्रिंट होनी है. So here we have assigned the address of c to pc pointer, and when we change the star pc using 1, the star pc equal to 1, the location got updated, and that's why the new value of c is 1. Now let's take another example where you have star pc, then c and d declared, where c is 5, d is minus 15. Now you write pc equal to ampersand c, then printf %star pc, it will output 5. then again you write pc equal to ampersand d. तो आपने pc की वैल्यू चेंज कर दी, तो पॉइंटर की वैल्यू आपने अभी नए पॉइंटर d पे लगा दी, and now again you print star pc, it will output minus 15. So initially the c was assigned, c's address was assigned to pc using this command pc equal to ampersand c. और फिर बाद में हमने क्या किया, जब c पास था तो स्टार pc भी पास था. then the address of d is assigned to the pc, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमने कमांड किया यूज की pc equal to ampersand d, and since d was minus 15, star pc also becomes minus 15. Let's take an example how we work with the pointers. So let's start with this particular code. Here we can see that include stdio.h, हम इस तरह से और 5 डिक्लेरेशन करते हैं, standard lib.h, then conio.h, strings.h और mat.h. फिर हम एक्चुअल कोड चालू करते हैं. हम यहाँ पे void लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे main लिखते हैं, it's okay. int type main लिखा, return 0 किया तो भी चलता है. Next is int star pc, c. यहाँ पे c को हमने 22 वैल्यू असाइन की. अब हर पॉइंट पे आंसर क्या आता है देखते हैं. पहले हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ सी प्रिंट किया. अब यहाँ पे देखो एड्रेस जब भी प्रिंट करते हैं तो आप %d वगैरह नहीं लिखते, सीधा %p लिखते हैं. तो रिमेंबर, अगर आपको पॉइंटर वो %p, यू कैन रिमेंबर पॉइंटर का p होता है, तो स्टार p लिखते हो एंड एम्परसेंड c लिख देते हो उसको, तो अपने आप वो पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट कर देता है. द वैल्यू ऑफ c %d/n/n, c is 22. then c equal to pc equal to ampersand c, एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर pc. यहाँ पे क्या किया है, सीधा pc को ampersand c is same as pc, तो यहाँ पे सीधा pc लिख दिया है और %p लिख दिया है. तो इन दोनों में चेंज देखो, यहाँ पे %p लिख के ampersand c देना पड़ा था, जबकि यहाँ सीधा pc दे सकते हो, और उसकी वैल्यू जो है वो स्टार pc से आती है. तो रिमेंबर दिस कि जब भी स्टार लगता है प्रोग्राम का पॉइंटर के पहले, so what you have to do is read the actual value which was 22, which is stored at c. यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि ampersand c का आंसर क्या आएगा, वो आप जब भी प्रोग्राम रन करोगे नया आएगा. then c equal to 11, so we have updated the content of 11. again the address, this will remain same, जो यहाँ हुआ था वही एड्रेस प्रिंट होगा, पर जो कंटेंट ऑफ द पॉइंटर है वो 22 से लेके 11 हो जाएंगे.
देन यू चेंज द स्टार पीसी इक्वल टू 2, मतलब क्या किया आपने, वापस सी का ही वैल्यू चेंज किया। तो सी का वैल्यू चेंज करने के ये दो तरीके, एक तो सीधा सी इक्वल टू 11 लिख दो या स्टार पीसी इक्वल टू 2 लिख दो। एंड आफ्टर दैट एड्रेस ऑफ सी हमने लिख दिया पॉइंटर से एम्फरसेंड सी, फिर वैल्यू ऑफ सी परसेंट डी और सी करके रिटर्न 0 कर दिया हमने। So output will be address of C is 2686784, value of C is 22. Then next of यहाँ देखो एड्रेस कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, एड्रेस ऑफ द पॉइंटर रिमेन्स सेम वंस असाइंड इन द बिगिनिंग। अब आप बोलोगे कि हमारा ये नंबर नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा, हर बार आप प्रोग्राम रन करोगे तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो नया असाइन होता है, पर ये जो वैल्यूज है 22, 22, 11 और 2 ये सेम आने वाले हैं। So explanation of this program, let's understand step by step. पहले तो int star pc cross c में दो वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं। Here pc is a normal variable, pc is a pointer and c is a normal variable। तो पॉइंटर को अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो तो जनरली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के नीचे एरो दिखा देते हो, तो उससे पता चलता है कि वो पॉइंटर वेरिएबल है, और रेगुलर वेरिएबल को आप बॉक्स में डाल देते हो। बोथ आर ऑफ टाइप int विच आर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड। अब आप ध्यान में रखो, मेमोरी जो है वो कभी ऐसे मैं 5.5 बिट लोकेशन पे जाके एक्सेस नहीं करूंगा, आइदर मैं 5th बिट लोकेशन पे जाके एक्सेस करूंगा या 6 पे। तो पॉइंटर्स जनरली इंटीजर में ही रखते हैं, देयर इज नो हार्म इफ यू कीप इट इन फ्लोट, बट you are unnecessarily wasting the space. So pointers are generally defined in int format only because your memory has a fixed integer values, ठीक है। Then both type of int created, since pc and c are not initialized at initially, pointer pc pointed no address or the random address, and the c has address but contains a random garbage value। So यहाँ पे देखो आपने अगर इनिशियलाइज नहीं किया है तो पीसी तो असाइन हो जाएगा टू नो एड्रेस या कोई भी रैंडम एड्रेस, whereas C will be containing a garbage value। So first line जब आप ये करते हो C प्रोग्राम में, यू कैन जस्ट ट्राई एंड प्रिंट, आपको कुछ भी नंबर आएगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो उस मेमोरी लोकेशन पे होगा वो उसको असाइन हो जाता है। नाउ व्हेन यू राइट C इक्वल टू 22, यहाँ पे क्या होता है, आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स C में 22 आता है, पीसी अभी भी रैंडम है, उसके अंदर कोई नंबर अभी तक स्टोर नहीं किया है। सो दिस असाइंस द 22 वैल्यूज टू C and 22 is now stored in the location at some variable location। Then when we write PC equal to एम्फरसेंड सी, अब ये पॉइंटर जो है वो कनेक्ट हो गया सी के साथ। तो नाउ दिस पीसी इज नाउ हैविंग सम सेंस कि ये सी की जो लोकेशन है वो अब पीसी में आ गई। उसके पहले अगर आप पीसी एक्सेस करोगे तो उसमें रैंडम नंबर ही होता है। फिर व्हेन वी से सी इक्वल टू 11, तो आपके वैल्यू में 11 लोड हो जाता है। अगेन पीसी इज नाउ लिंक्ड, क्योंकि वो आपने एक बार प्रोग्राम में लिंक करके रखा है। अब पीसी चेंज करना है तो आपको पीसी की वैल्यू एम्फरसेंड डी या जो भी नए वेरिएबल से उसको लिंक करना है उससे रिप्लेस करके तभी वो चेंज होगी, अदरवाइज स्टार पीसी पे हमेशा सेम नंबर आते रहेगा। सो दिस असाइंस द वैल्यू 11 टू सी। देन स्टार पीसी इक्वल टू 2, ये क्या कर रहा है, पीसी जिस भी एड्रेस के साथ लिंक है वहां पे 2 लोड कर रहा है। तो यू कैन सी वो एक्चुअली सी के साथ ही लिंक है, तो पीसी में आपने स्टार पीसी में जो भी भेजा वो सीधा सी पे जाके राइट हो गया। So this changes the value of the memory location pointed by PC to 2. Now, common mistakes while working with the pointers that we do is, suppose we want to point PC to the address of C. हम क्या क्या मेजर मिस्टेक करते हैं, हम यहाँ पे डिक्लेयर तो C और स्टार PC कर देते हैं, ओके। Here PC is the address but C is not, and then we say PC equal to C, तो ये एरर थ्रो करता है क्योंकि हमने एड्रेस डिफाइन किया है, वहां पे पीसी इक्वल टू सी नहीं लिखना होता, अपने को एम्फरसेंड डालना पड़ता है। देन और एक मिस्टेक करते हैं, स्टार पीसी इक्वल टू एम्फरसेंड सी लिखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप जो लोकेशन कंटेंट ऑफ द सी है उस पे एड्रेस ऑफ द सी लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी एरर है, ओके। देन पीसी इक्वल टू एम्फरसेंड सी लिख देते हैं, तो इसमें क्या होता है, बोथ सी एम्फरसेंड सी इज अ एड्रेस एंड पीसी इज आल्सो अ एड्रेस। एंड फाइनली स्टार पीसी इक्वल टू सी लिख देते, तो बेसिकली ये एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं ना, तो इसमें भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि सी भी अननोन है और स्टार पीसी भी अननोन है। सो करेक्ट तरीका होता कैसे लिखने का, तो यू कैन राइट इन दिस वे। सो सम find it very confusing, so you can separately defining
सो सेपरेट डेफिनेशन कैसे करते हैं, इंक्लूड stdr.h, ठीक है, फिर इंट मेन या void मेन जो भी लिखना चाहो, देन फर्स्ट आप जो अपना रेगुलर वेरिएबल है उसको सेपरेटली डिफाइन कर दो, इंट c इक्वल टू 5, ठीक है, फिर इंट स्टार p इक्वल टू एम्फेसेंट c। ये डिक्लेरेशन बहुत आसानी से और सीधी तरीके से हो जाता है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको एरर नहीं आएगा। एंड देन यू ट्राई टू प्रिंट परसेंट डी स्टार p, तो आपको 5 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी एंड देन वी विल रिटर्न 0। It is because int star p equal to ampersand c is equivalent to int star p and then p equal to ampersand c. So declaration plus assignment यहाँ हो रहा है। तो आप सेकंड वाले और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में डिफरेंस देखो, यहाँ पे int star p equal to ampersand c लिखा है, हाँ, यहाँ पे p equal to ampersand c नहीं लिखा है क्योंकि p डिक्लेयर भी हो रहा है और उसी वक्त उसकी असाइनमेंट भी हो रही है। जबकि सेपरेट जब करते हैं तो हम पहले स्टार पी डिफाइन कर देते हैं और फिर p इक्वल टू एम्फेसेंट c लिखते हैं। इन बोथ केसेस वी आर क्रिएटिंग अ पॉइंटर p एंड नॉट स्टार p एंड असाइनिंग अ एम्फेसेंट c टू इट। सो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन वी कैन यूज स्टेटमेंट्स लाइक इंट स्टार फिर स्पेस देके p इक्वल टू एम्फेसेंट c। तो इससे थोड़ी कंफ्यूजन कम हो सकती है कि स्टार p डिक्लेयर किया है या फिर जो भी है। सो इस तरह से डिक्लेरेशन करने से नाउ यू नो दैट pointers which pointer it is pointing to. Now relationship between arrays and pointers. So let's understand, we have studied the arrays and we have also studied the pointers. So array is a block of a sequential data. तो ये मेन चीज है जिसकी वजह से arrays और pointer रिलेट हो जाते हैं, क्योंकि अब तक हमने क्या किया था कि array डिफाइन किया, पर array का मेन एडवांटेज ये है कि पूरे मेमोरी से वो एक के आगे एक कंसेक्यूटिव लोकेशन लेते जाता है। So that's why it's a block of a sequential data. Let's write a program to address an array of element. So how you can access an entire array of a element using a pointer. So पहली चीज तो हम बाय डिफॉल्ट कैसे करते हैं, इंक्लूड stdr.h, तो आप लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड कर लो, देन इंट मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इंट x रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 4 सेमीकोलन, ठीक है, देन इंट i सेमीकोलन, for I going from 0 I less than 4 plus I, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट printf एम्फेसेंड x परसेंट d, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यूजर को परसेंट d मतलब I प्रिंट करने बोल रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू परसेंट p मतलब हम पॉइंटर प्रिंट करने बोल रहे हैं विच इज एम्फेसेंड x ऑफ I। अब I जैसे आपका चेंज होगा ये x ऑफ 1 होगा, x ऑफ 2 होगा, x ऑफ 3 होगा एंड सो ऑन, तो आपको यहाँ पे एड्रेस ऑफ 1 2 3 4 दिखाई देंगे एंड देन फाइनली प्रिंट एड्रेस ऑफ अरे, देन परसेंट p जो भी है वो अरे का स्टार्टिंग पॉइंट आपको इंडिकेट कर देगा। और ये आपको इसमें देखने मिलेगा व्हेन वी रिटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट विद द 0th पोजीशन 1 4 5 0 7 3 ये छोड़ दो जो भी है, और रैम की लोकेशन है 48 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। Now since it was int, it was taking 4 bytes, तो next 52 पे रहा, 56 पे रहा, 60 पे रहा, ठीक है। ये ध्यान में रखना होता है कि अगर आपका कैर है, इंट है, फ्लोट है, तो उतने स्टेप्स में इंक्रीमेंट होगा। ऐसे नहीं है कि ये 48 पे होगा तो नेक्स्ट 49th लोकेशन पे x ऑफ 1 आ जाएगा x ऑफ 0 की जगह, क्योंकि वो खुद की मेमोरी भी लेगा ना। तो जब 0 लोकेशन पे 48 से स्टार्ट हुआ तो आगे के 4 बाइट वही वेरिएबल कंटेंट करेगा, उसके बाद x1 जो है वो सीधा 52 पे आएगा। देन एड्रेस ऑफ द अरे, व्हेन यू आस्क फॉर द एड्रेस ऑफ द अरे तो x0 की लोकेशन ही वो बता रहा है। So this is how you get the addresses from the arrays. Now there are different 4 bytes between each consecutive elements of x. This is because the int uses 4 bytes on the compiler. Now notice that the address of ampersand x0 is same as x. This is because variable name x is always pointing to the first element, that is x of 0. For in above example, it is clear that ampersand x0 is equivalent to x and x0 is equivalent to star x. So similarly, you can write ampersand x1 is equivalent to x plus 1 and x1 is equivalent to star x plus 1. So this is how you can address the particular location. Similarly, by default, अगर ampersand x plus 2 is equivalent to x plus 2 डायरेक्टली लिख दोगे तो x रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 2 कैन बी इक्विवेलेंट टू स्टार x प्लस 2। ये ध्यान में रखो कि ये पॉइंटर लोकेशन है, तो एम्फेसेंड जब भी लिखते हो
तो वो उस लोकेशन के एड्रेस को पॉइंट करता है। और जब भी आप स्टार लिखते हो, पॉइंटर देते हो, तो वो सीधा मतलब आपको सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट स्टार x प्लस 2। ये डायरेक्टली क्यों हो रहा है? क्योंकि 0th पोजीशन जो है वो स्टार x थी, तो स्टार x प्लस 1 जब लिखते हो तो वो फर्स्ट पोजीशन ऑफ अरे पे चला जाता है। तो दिस इज द मेन एडवांटेज, वरना तुमको बार बार देखना पड़ेगा कि 4 बाइट का इंट डिक्लेरेशन है या फिर फ्लोट डिक्लेरेशन है या फिर कोई और तरह का डिक्लेरेशन है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे वो चीज आसान हो जाती है कि स्टार x लिखने की वजह से तुम्हारा 48 पे अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो स्टार x प्लस 1 लिखने से सीधा 52 जाता है, 49 पे नहीं जाता। So basically ampersand xi is equivalent to xi and x of I is equivalent to star x plus I। तो ये ध्यान में रखना कि उस लोकेशन को अगर आपको एक्सेस करना है तो सीधा आप x प्लस 1 लिख सकते हो, और उस लोकेशन के कंटेंट को एड्रेस करना है तो स्टार x प्लस 1 लिख सकते हो। Now let's try and solve the example on pointers and arrays together। So यहाँ पे हमने क्या किया है कि include एक standard library include कर लिया है, then int main। So here what I am trying to write is int I x of 6, then sum equal to 0। Then we are asking user to enter 6 numbers। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we are going to add 6 numbers together using a pointer। अब ये हम कैसे कर रहे हैं ठीक से देखना, scanf यहाँ पे %d x of I। सो ये जो है, ये एम्फेसैंड लिखने की जो मेहनत है वो बच गई, सीधा आप x ऑफ I लिख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेरेशन भी कहीं नहीं हुआ है स्टार डाल के, फिर भी आप x ऑफ I जब एक्सेस कर रहे हो तो वो इंटरनली उसकी लोकेशन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्फेसैंड लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्विवेलेंट टू %d एम्फेसैंड x ऑफ I। अब ये बहुत बार लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि ये कौन सी लोकेशन पे जा रहा है, बट it is okay because sometimes it is, you should remember whenever there is a array the pointer is by default there, and that's why what we are doing is star of x of I is equal to sum। तो आप सीधा उस लोकेशन की सम जो है, जैसे पहला नंबर एंटर किया उसको सम में ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट नंबर एंटर किया उसको सम में ऐड कर दिया, और ये सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको सम इनिशियलाइज टू 0 करना होता है, जो हमने इस लाइन में किया है। So then printf sum equal to %d sum। So this will return as the final answer। देखो यहाँ पे sum का पॉइंटर वगैरह यूज नहीं किया है because we have never declared it, but for the arrays we can directly use the pointers। So when you run this program, your output should look like this। User has entered 2 3 4 4 12 4 and final sum is 29। Here we have declared an array of 6 elements। To access the element of the array we have used the pointers। In most of the context, array names decay to the pointer। In simple words, array names are converted to pointers itself। That's the reason why you can use pointers to access the elements of the array। However, you should remember that pointers and arrays are not the same। Here are few cases where you don't decay the pointers directly। So what are those cases? We will see। The first case is here you say include stdr.h, then int main कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज इंट x ऑफ 5 1 2 3 4 5। तो ये x0 पे 1 डाल दिया, x1 पे 2 डाल दिया, सिमिलरली x4 पे 5 डाल दिया। देन यू डिक्लेयर अ पॉइंटर। ओके, नाउ हियर रिमेंबर इंट स्टार ptr लिखा है। हाँ, दिस इज नॉट अ गुड वे टू राइट। मैं हमेशा इंट स्पेस स्टार ptr लिखता हूँ, जो इससे मुझे पता चलता है कि ये ptr पॉइंटर है। Then pointer is assigned to the third element of the array। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ptr equal to ampersand x of 2, 0th element पे नहीं है। हाँ, now if I try to print the star ptr value, it should display me 3, which is the content of the third element। Huh? Now if I try to address star ptr plus 1, it will display me 4, which is the one location next to 3। Okay, and now if I try to print the content of ptr minus 1, तो यहाँ पे star ptr minus 1 पे 2 है। So basically अभी हमने पॉइंटर सेंटर एलिमेंट पे फिक्स कर दिया है, so we can go above and below the pointer location। Whereas in the last example we can only go x plus I or x plus 1 2 3 4 जितना भी लेंथ है उसका। So when you run this program, it will show star ptr contains 3, which was obviously assigned to element, then star ptr plus 1 was 4 and star ptr minus 1 was 2। So in this example, ampersand x2 is the address of the third element which is assigned to the pointer,
Hence 3 was displayed to star PTR. After printing PTR plus 1, the fourth element was displayed, and similarly PTR minus 1, the second element was displayed. So now how we will use a C to pass the addresses and the pointers. So let's understand this. In the C programming, it is always possible to pass the addresses as an argument to the function. To accept these addresses, the function in the function definition, we can use the pointers because pointers are stored addresses. For example, यहाँ पे ध्यान रखो ये कोड कैसे चल रहा है. पहले तो हमने include stdio.h किया, फिर हमने वाइड स्वैप मतलब स्वैप करके फंक्शन लिखने वाले उसका डिक्लेरेशन दे दिया. ठीक है. फिर int n1 int n2 ये दो उसको पॉइंटर्स पास होने वाले ये भी हमने बता दिया. फिर नेक्स्ट इज int main, फिर int num1 इक्वल टू 5 num2 इक्वल टू 10. अब मैं मतलब खुद जब डिक्लेरेशन करता हूँ तो मैं int num1 इक्वल टू 5 सेमीकोलन int num2 इक्वल टू 10 करता हूँ क्योंकि मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है. Although it increases the length of the code, but everything is then becomes very clear. Then address of num1 and num2 is passed. So we swap now ampersand num1 and ampersand num2. So we have already assigned 5 and 10 to them, but we are actually passing the addresses. And then we are printing num1 and num2 and returning 0. So inside the swap, please remember हमने अगर ampersand pass किया तो यहाँ पे star n1 लिखना होता है and int star n2. So we have to declare two pointers n1 and n2 to which the values ampersand num1 and ampersand num2 will get assigned. तो इसीलिए ये डिक्लेरेशन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है कि n1 में ampersand num1 स्टोर हो जाएगा and n2 में ampersand num2 स्टोर हो जाएगा. Then int temp, so we have created one more variable which is a local variable, not a global variable. इसका मतलब क्या होता है कि ये temp जो है वो सिर्फ इसी लूप के अंदर वैलिड है. If I try to access it from the main loop, it won't be accessible क्योंकि वो इस लूप में डिक्लेयर्ड है और इसी लूप में उसकी जिंदगी शुरू होके खत्म हो जाती है. जबकि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो सारे लूप्स के बाहर लिखा जाता है, जैसे void swap के नीचे आप लिख सकते हो. सो वो मेन के अंदर नहीं लिखा है, स्वैप के अंदर नहीं लिखा है, फिर भी हम उसको मेन और स्वैप दोनों से एक्सेस कर सकते हैं. उसमें प्रॉब्लम यही होता है कि अगर वो मेन में अपडेट हो गया तो स्वैप में उसकी अपडेटेड कॉपी मिलती है. तो आपने ओरिजिनल जो डिक्लेरेशन किया था वो लोकली मॉडिफाई होता है तो वो ग्लोबली भी मॉडिफाई हो जाता है. तो उसके लिए भी वेज है, हमने अभी इसको इस लेक्चर में वो नहीं सीखना है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनसाइड द स्वैपिंग. सो temp1 इक्वल टू स्टार n1, n1 star equal to star n2, and then star n2 equal to temp. So when you run the program, the output will look like this: num1 equal to 10, num2 equal to 5. The address of num1 and num2 are passed by the swap function using swap ampersand num1 ampersand num2 command. The pointer n1 and n2 accept these arguments in the function definition itself. So void swap int star n1 int star n2. Now when star n1 and n2 are changed, the inside content of the swap, then num1 and num2 are also changed. So in the main function, when you try to print num1 and num2, they are already swapped. So notice that swap is not returning anything, but it's just a type void type. पर असल में changing memory location पे कर दिया हमने, तो main में अपने आप reflect हो गए. Another example of passing the pointers to the functions we will see. Here we will declare the function before the main function. तो यहाँ पे हमने शुरुआत की है include stdio.h, then void add1 करके एक फंक्शन लिखा int star ptr. तो यहाँ जो भी वैल्यू पास होगी वो इस ptr वेरिएबल को असाइन हो जाएगी. Then curly bracket open, inside that I have written star ptr के जो भी कंटेंट है उसको 1 से बढ़ा दो and then go back. ओके यहाँ भी कोई रिटर्निंग फंक्शन नहीं है, ये भी void वाला फंक्शन है, पर असल में मेमोरी कंटेंट ही अपडेट हो गए. तो आप रिटर्न करो या ना करो, मेन से जब वापस वो मेमोरी रीड होगी तो अपडेटेड मेमोरी ही रीड होनी है. सो इंट मेन इंट स्टार p कॉमा i इक्वल टू 10 लिख दिया हमने, फिर p इक्वल टू एम्फरसैंड i. हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एड्रेस ऑफ i जहाँ पे 10 स्टोर है वो p में लोड कर रहे हैं. Then add one p, तो p हमने पास कर दिया which was a pointer to the address of 10. I know ये बहुत confusing statement है, pointer to the address of 10. So let's understand कि i equal to 10 मतलब वेरिएबल i में 10 स्टोर किया है. ये पहला स्टेटमेंट हो गया. ठीक है.
फिर स्टार पी इज अ पॉइंटर डिक्लेयर्ड, उसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं है। फिर हमने यहाँ क्या लिखा, पी इक्वल टू एम्फेसेंड आई, तो आई की वैल्यू 10 है, तो 10 जहां भी स्टोर्ड है उस लोकेशन को लेके आओ, एम्फेसेंड मतलब उस लोकेशन को ढूंढ निकालो खुद से एंड असाइन इट टू द पॉइंटर पी। फिर एड वन पी, तो पी जो पॉइंटर है उसको फंक्शन को पास कर दिया, दैट मीन्स पी विल बी नाउ असाइन टू दिस पीटीआर, ठीक है। एंड फाइनली स्टार पीटीआर प्लस प्लस मतलब पॉइंटर के कंटेंट पे एक ऐड कर दो, एंड देन फाइनली प्रिंट एफ परसेंट डी स्टार पी रिटर्न 0, so this will return 11 for us. Here the value stored at p star p and which is initially 10. Now when we access the pointer p, we pass the pointer p to add one function. The ptr gets this address inside the add one function. Now inside the function, the value stored at ptr is incremented by 1 using star ptr plus plus, and then both the pointers have same address. That's why in the main also the final value of p star p has got incremented to 11. अगर आप यहाँ पे आई प्रिंट करते तो वो भी 11 ही आता, क्योंकि वो भी अपडेट हो चुका है। Now we go to the C, dynamic memory allocation. So basically, what we have seen, we have already used this MAL-LOC function, but what are these? Let's try and understand. Mostly ये part syllabus से बाद में निकाल दिया जाएगा, तो हम सिर्फ understanding के लिए, क्योंकि since you are from a computer branch, I don't want you to miss out something in first year because of the reduction in syllabus. So let's understand. अगर syllabus में रखते तो well and good, अगर निकाल देते syllabus में से फिर भी we should able to understand what is that, क्योंकि आगे चल के पूरे सेमेस्टर या जिंदगी भर ये लगने ही वाला है। So let's understand. So array is a collection of fixed numbers and the size of the array is declared. Once it is declared, you cannot change it. But sometimes you cannot declare, or you are not capable of declaring the array in the beginning itself. To solve this issue, C program allows us to allocate the memory during the runtime itself, and that is what we call the डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग। मतलब क्या है कि पहले से कैसे पता होगा कि कितने वेरिएबल यूजर एंटर करने वाला है। सो वी यूज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। नाउ टू allocate the memory dynamically, library functions we have to use. They are MAL-LOC, then CAL-LOC, then REAL, real LOC, and free LOC, free FRE. These are the functions defined under a standard lib.h. तो आप हमेशा मुझे पूछते थे वो standard lib कब use होगा? So this is the point where we are first time using a standard lib के functions. Now the first function name MAL-LOC stands for memory allocation. Okay, so MAL-LOC alloc, so memory allocation, उस तरह से आप उसको pronounce कर सकते हो, malloc. This function is a reverse block of memory specified by the number, and it will return the pointer. And you can use void because it is you don't know the type of the pointer. So for example, how you will use the syntax malloc. So basically pointer equal to cast type star. ठीक है, तो cast type star जो है you don't know type, and then you will ask malloc size. So it will return you the size of the cast type. For example, ptr equal to यहाँ cast type select किया float, ठीक है, and then memory alloc 100 into size of the float. The above statement allocates 400 bytes of memory. 400 क्यों? क्योंकि हमने float define किया है, तो float जो है वो 4 byte per memory location लेता है. So 100 into the size of float, which is 400 bytes are allocated from this particular statement. This is because float is of 4 bytes and PTR holds the address of the first byte. So from that 400 bytes will get reserved. Now the expression results in null if you cannot be allocated. So if you get null as the output, then the memory was already occupied or not writable, और हम जिसको ROM बोलते हैं, read only memory, ऐसे लोकेशन के एड्रेस पे अगर चला जाता है ये पॉइंटर तो आपको null रिटर्न आता है. Next is C. Basically C call OC या फिर C alloc भी बोल सकते हो. This particular function stands for continuous allocation. So इसमें क्या होता है
malloc allocates the memory and leaves the memory unutilized, whereas allocates the memory and initialize it to bit 0. बेसिकली हम इसको क्लियर एंड allocate भी बोलते हैं, तो उसके पहले के कंटेंट जो है उसको हम साफ भी कर देते हैं. तो calloc is the function where you put everything or replace everything by zeros. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिंटैक्स ऑफ calloc देख सकते हो, पॉइंटर इक्वल टू कास्ट टाइप जो भी है, हाँ, उसके बाद calloc n कॉमा साइज. ठीक है, तो इसमें हम पहले कैसे करते हैं, पॉइंटर इक्वल टू फ्लोट स्टार देन calloc 25. अब ये 25 जो है वो जनरली यूजर से लेते हैं कि कितना वेरिएबल आने वाला है, एंड देन साइज ऑफ फ्लोट. अब टाइप ऑफ द वेरिएबल पहले से पता होना चाहिए कि यूजर कैरेक्टर डालने वाला है या स्ट्रिंग डालने वाला है या फ्लोट डालने वाला है. So this particular statement will reserve 25 elements of type float. मतलब float हर एक को 4 बाइट लेता है, तो टोटल 100 एलिमेंट्स वो बुक कर देगा. Now C free. So यहाँ पे free जो कमांड है, dynamically allocate memory created by either calloc or malloc doesn't get freed on their own. So you have to explicitly free them or release that space. I know this kind of memory allocation now new generation people never see because they have hard disk in TBs and RAM in GB. But when we used to operate on the computer, हमारे पास 4 MB की RAM रहती थी और 1 GB का hard disk रहता था. And at that time, all these commands were relevant. Now this generation doesn't even feel कि वो अंदर internal memory waste कर रहे हैं. मुझे तो याद भी नहीं होगा कि किसी को पता होगा disk defragment किसी ने किया है कंप्यूटर में. तो बेसिकली आपको मेमोरी की कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है, और आती भी है तो आप 3,500 में एक नया 1 TB का हार्ड डिस्क बाहर से ले आते हो, तो आपने कभी ये सोचा भी नहीं है कि वो जो यूज की हुई मेमोरी है उसको फ्री करे. एंड नाउ विद दिस क्लाउड स्टोरेज अराउंड, with this Somaya ID, you are getting infinite storage. Then so you never care about the free like memory. But in the practical scenarios, like we are writing some code for the embedded system, जहाँ पे आज भी आपकी मेरे ख्याल से हाईएस्ट मेमोरी 8 GB वगैरह ही है, तो वहां पे ये सारी चीजें मायने रखती है. तो अगर आप कोई एम्बेडेड सिस्टम या कोई रोबोट बना रहे हो तो उसमें मेमोरी लिमिटेड है, बिकॉज ऑफ द साइज इटसेल्फ कि आप छोटी छोटी चीजें बनाते हो, तो आप उसमें इनडिफाइनेट हार्ड डिस्क डाल दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा. तो ये एक रीजन है, और जिसकी वजह से वो ऑन चिप या जो आपका आईसी लगा है उसी में मेमोरी रहती है, एंड दैट इज लिमिटेड. So finally you have to use this kind of commands. So free PTR क्या कहता है? This statement frees all the memory space allocated to that particular pointer PTR. So here is the example where we will use malloc and then free. So let's start with the program. So include stdio.h, then include standard lib.h, int main, then ni star PTR or sum equal to 0. इतना हमने डिक्लेरेशन किया. अब यहाँ पे enter number of elements. First user will enter कि कितने एलिमेंट है, let's say उसने डाला 10, so that will get recorded into n. Then you use your pointer allocation. यहाँ पे type integer मुझे पता था इसलिए मैंने int स्टार लिख दिया, malloc into size of int. अब ये size of int आपको इंटरनली पता है, पर आपके कंपाइलर के हिसाब से वो वेरी करता है, इसीलिए हमेशा size of int लिखो. यहाँ पे सीधा 4 लिखने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ कुछ कंपाइलर में वो 2 होता है, कुछ कुछ में 8 होता है. तो साइज ऑफ जो फंक्शन है वो उसी कंपाइलर पे रन हो रहा है, तो यू विल गेट ऑलवेज द करेक्ट साइज एक्सट्रैक्टेड एंड दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय n. एंड देन इफ द मेमोरी कैन नॉट गेट अलोकेटेड, हाँ, अगर ptr इक्वल टू नल आया, देन यू से एरर मेमोरी वाज नॉट अलोकेटेड, exit 0. ओके, नाउ अभी तक हमने exit 0 फंक्शन सीखा नहीं है, बट दैट विल नॉट रन द कोड अहेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. And then printf enter the elements. It will ask user to enter the element. तो ये if loop के अंदर गया नहीं तो वो सीधा printf तक पहुंच जाता है. And फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि for I going from 0 I less than n I plus plus, then scanf %d ptr plus I. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधा ptr plus I पे वो लोकेशन स्टोर करते जा रहे हैं. And then sum plus 1 equal to star ptr plus I. सो ये चीज हमने पहले भी देखी हुई है, हमने एक कोड पहले भी किया हुआ है, पर उस वक्त हमने इसको समझा नहीं था. सो वी हैव डायनामिकली अलॉटेड द मेमोरी फॉर n एलिमेंट्स इनटू द इंटीजर. और उसके बाद के कोड में हम लोग उसको अलॉकेट करने के बाद फ्री कर देते, तो फ्री ptr एंड देन रिटर्न 0.
सो ये दो नेक्स्ट लाइन है जो कि पीटीआर को खाली सम एडिशन कर लिया हमने, फिर वी डीअलोकेट द एंटायर मेमोरी एंड वी एंड द कोड. So this is how the allocation. Similarly, now we will see another example where we will use calloc and free functions. So again stdio पहली दो line as it is है, int main n comma I star ptr num कर देता है, enter number of elements %d comma ampersand n, then pointer equal to star int calloc n size of int, then ptr equal to null error memory allocated, देन अगेन एग्जिट 0. तो यहाँ तक कोड सेम है, सिर्फ यहाँ malloc की जगह calloc ले लिया है आपने. देन यू आस्क यूजर टू एंटर द एलिमेंट. तो आप यहाँ पे देखोगे कोड एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ malloc की जगह calloc लिख दिया है. फर्क क्या होगा, जब malloc किया था तो आपने मेमोरी जो है उसको क्लियर नहीं किया था, जो भी अलोकेटेड मेमोरी है वो एज इट इज रह गई थी. पर जब आप calloc उसको करते हो तो यू एक्चुअली क्लियर द मेमोरी एलिमेंट्स एंड देन लोड द न्यू वैल्यूज. So scanf %a and then do the sum. Once you display the sum, you can free the pointer and return 0. Now there is one more point which is realloc. So if dynamic memory allocated is insufficient and more memory more than what is required, you can change it by previously allocated memory using a command realloc. हाँ, उसको real lock भी कुछ लोग बोलते हैं. So realloc या फिर real lock जो है उसका कमांड ऐसे होता है, ptr is equal to realloc ptr comma x, where x will be the new size of the memory. Here ptr is reallocated with the new size of x. So let's see an example with a realloc. यहाँ पे stdio.h standard lib तो फिर से यूज किया है. Again star pointer I n1 and n2. हाँ, हम पहले यूजर से इनिशियल साइज लेंगे %d n1, उतनी मेमोरी malloc से उसको allocate कर देंगे. अब ये स्टेटमेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग जिनको लग रहा है, प्लीज फोकस. पॉइंटर इक्वल टू पहले डेटा टाइप लाइक स्टार int स्टार वगैरह ब्रैकेट देके malloc और अंदर एक नंबर लिखना होता है, पर ये नंबर अपने को पता नहीं है, इसलिए हम n1 यूजर से लिया हुआ नंबर और साइज ऑफ इंट ये हम प्रोग्राम से लिया हुआ नंबर ले रहे हैं. Even if you write size of int equal to 4 here sometimes work, but it is always better to use size of. Now address previously allocated memory uses print. For I going from 1, I less than n1, just go on assigning. Now you will ask user to enter the new size. Okay. ये बहुत गंदी तरीके से फॉर लूप लिखा है. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि फॉर लूप लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करो ताकि पता चले इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है. हाँ, उसके बाद न्यू साइज हम यूजर से पूछते हैं scanf n and then you use this function. So similar to this n1 star size of, similarly n2 star size of, पर यहाँ पे सीधा पॉइंटर मेंशन करना है जिसका साइज आप रीअलोकेट कर रहे हो. And once you do that, you will say new reallocated size is this one. Then again you can ask user to print the values for those many locations, and then finally free the pointer and return. So when you run this program, your output will look like this. Enter a size, user ने डाला 2. So previously allocated memories were 2, 6, 4, 8, 5, 5, 4, 7, 76 वगैरह. एंड न्यू साइज जब आप 4 डालते हो तो उसमें और दो वेरिएबल आगे के ऐड हो गए. आप यहाँ देखो, सिंस इट वाज इंटीजर 72 के बाद 76 आया, 76 के बाद 80 और उसके बाद 84 आ रहा है. सो अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज यूजिंग अरेज. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन. सो आई विल जस्ट रन थ्रू द प्रोग्राम वी हैव ऑलरेडी डन. सो आई गेस यहाँ पे हमको लूप्स वगैरह भी सीखने हैं व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन. So this is the program stdio.h. Then we will ask user, main loop start होता है n और I user से लेते हैं और एक float declare करते हैं num which is having 100 space and then sum which is 0 0 and then finally a average variable. यहाँ पे देखो sum जो है वो float में रखी है. तो याद रखना, मैं भी ये मिस्टेक बहुत बार करता हूँ प्रोग्रामिंग में, ध्यान नहीं रहता कि आप जब भी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो तो प्रिफरेबली रिजल्ट को फ्लोट में स्टोर करो, ना कि इंटीजर में, क्योंकि वो राउंड ऑफ कर देता है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो इफ यू मेक दिस मिस्टेक, आपको कोड एकदम सही लगता है पर कहीं ना कहीं वो एवरेज आउट हो जाता है और जिसकी वजह से आंसर गलत आता है. जैसे 50.4 है तो वो सीधा उसको ट्रंकेट करके 50 लिख देता है अगर आपने इंट डिसीजन लिया है. एंड व्हेन दैट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज यूज्ड फर्दर,
हर जगह वो एरर प्रोपोगेट करता है और बढ़ते जाता है. So remember, whenever you are doing a mathematical operation, especially division or multiplication, please make sure that you use a float to store the result. So we will ask user to enter the numbers. कितने numbers है वो बोलेगा. Percent is scanf से हम उसको ampersand n में store कर लेंगे. Now while n is less than 100 and greater than 1, हाँ, अगर उससे बड़ा है तो you tell user कि मैंने बस 100 का ही allocation किया है. अब आप बोलोगे सर आपने एम अलॉक करके क्यों नहीं किया. कर सकते थे, पर ये ऐसे ही एक दिखाने के लिए प्रोग्राम है. सो इट डजंट मैटर. और कहाँ यूजर 100 नंबर एंटर करते बैठेगा. सो समथिंग इनह्यूमेबल भी नहीं चाहिए ना. कल 1 लाख किसी ने डाल दिया तो प्रोग्राम तो इनफाइनेट लूप में ही रहेगा, क्योंकि 1 लाख एंट्री आने तक उसको वेट करना पड़ेगा. सो यू कैन लिमिट. जनरली 200 की लिमिट में रखता हूँ. एक इंसान 200 से ज्यादा एंट्री एक दिन में तो नहीं मारता. मतलब वो बीच में चाय पीने तो जाएगा ही. तो 200 की एंट्री काफी रहती है. देन एंटर अ नंबर अगेन. सो इट विल कीप ऑन आस्किंग द नंबर till you enter between 100 and 1. Else it will go to the for loop. It will start entering the numbers and उसको I plus 1 ampersand num I पे स्टोर करते जाएगा. एंड फाइनली उसका सम भी साइमल्टेनियसली लेते जाएगा. once the sum is done, the average is total n, जो कि ऑलरेडी 1 से बढ़ा हुआ है. मतलब भले ही 0 से स्टार्ट हुआ था, it is reached the correct point, so you can just divide it by that sum to get an average and finally display with the 2-digit accuracy. So user has entered 6. फिर उसने नंबर डालना शुरू किया. 45.3, 67.5 minus 45.6, blah 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 blah, and finally average आया 27.69. So here we first ask user to enter the number of elements and then he assigns the n value to it. If user entered integer greater than 1 and less than 100, we'll ask user to keep entering till he hits the correct number, and then we end a while loop. Then inside the for loop we go from 0 to n, and as soon as the iteration ends we will ask user to keep entering the numbers till the for loop is running and they are added. So at the same time we are using scanf %f num of I. So num of I में वो store भी हो रहा है. At the same time sum is getting incremented by sum equal to plus equal to num I. मैं खुद पर्सनली ये राइटिंग पसंद नहीं करता. मैं लिखता हूँ sum equal to sum plus num of I. पर जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स है उनको ये सब फैंसी शॉर्टकट यूज करना पसंद है. स्पेशली व्हेन you are going for programming interviews, never expect a simpler statement. They will always use a shortcut so that they will make sure that you know the shortcuts also. क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेवलपर्स कम और सॉफ्टवेयर डीबगर्स की ज्यादा जरूरत होती है. So once the for loop is computed, the average calculated and printed at the sum using the command. Largest number हमने already सीखा है, तो I will stop this lecture now and we will continue on Monday.